Hello students, welcome to the next lecture of states of matter. In this lecture we are going to discuss few measurable property of gas, properties which can be measured like mass, volume, pressure, temperature, and also we are going to discuss about different gas laws. Now, measurable property, the first measurable property of gas is mass. Now we can calculate the mass of a gas. The first measurable property is mass. Now how will you calculate the mass of a gas? So gas molecules are not rigid, they are not very close to each other, so you cannot just keep it on a weighing balance. What you need to do, you take an empty container, you fill that, weigh that empty container, get the mass of the empty container, fill that empty container with a gas, again weigh it, find the difference and you get the mass of the gas. Okay, so mass of the gas के लिए हम लोग अगर mass use कर रहे हैं, so we can use a unit kilogram, and we know that 1 kilogram is nothing but 1000 grams, and also 1 gram is nothing but 1000 milligrams. Or if you know the number of moles, we can use the formula mass upon molar mass, and from here we can calculate the mass of the gas easily. The second measurable property is volume. Now gas doesn't have their own volume, they occupy the volume of container. So जितना volume आप use करेंगे compress कर सकते हो. Plus one thing you need to remember, the gas are compressible, means in a 1 liter bottle you can fill 1 liter of liquid, but in a 1 liter bottle you can compress the gas. In that container you can compress the gas and you can fill more than 1 liter. Okay, so gas are compressible and they occupy the volume of the container. And what is the unit for volume? The SI unit of volume is a meter cube. It's a very big unit. So we use other unit also like decimeter cube, liters, milliliters, cm cube, and everyone should know the conversion that 1 meter cube is nothing but 1 decimeter cube or 1 liter or 10 raised to 10 raised to 3 decimeter cube or liter or 10 raised to 6 centimeter cube or milliliter. Okay, so 1 meter is nothing but 1000 decimeter cube or 1000 liter or 10 raised to 6 cm cube or milliliter. Now, as we know that 1 decimeter cube is equal to 1 liter, or we can also say 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube. So this is how you can calculate the volume and use a certain unit for the volume of gas. The third measurable property of gas is very interesting and very important, is pressure of gas. Now, pressure of gas कैसा find करेंगे? So, to find the atmospheric pressure of gas or any pressure of a gas, we require a device called as barometer. And to find a pressure of gas which is stored inside a container, we use a device called as manometer. Now, first of all, you need to understand what is the meaning of atmospheric pressure and how it is being calculated. The atmospheric pressure, we know that the entire earth is actually have a lot of gases, a mixture of a lot of gases are present in this atmospheric in the atmosphere. Now those gases are more close towards the earth's surface due to the effect of gravity, because these gaseous molecules are also under the influence of gravity, and because of the influence of gravity they are more close to the earth's surface. So any force experiencing by a particular surface of earth with respect to the mass of column of air above it is called as atmospheric pressure. And how to measure atmospheric pressure? Atmospheric measure करने के लिए Evangelista Torricelli, a scientist, he made a device called as barometer, and barometer help us to measure the pressure of gas in terms of rise of mercury in a column. मतलब मर्क्यूरी का लेवल राइज होगा जब गैस का प्रेशर एक्सर्ट होगा, और उससे हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं. कैसे मेजर करेंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. बैरोमीटर is a very simple device. It consists of a container. This container is completely filled with mercury, and we place a calibrated tube in it. So there is a calibrated tube inside जिसमें mercury enter कर सकता है, because of which the level of mercury can rise in this tube. Now when you carry this device to different height,
the surface, there will be a pressure exerted by the gas, the air on it. ये pressure gas जब exert करेगा mercury पे, the level of mercury inside this column will rise, and using this mercury column, the rise in the mercury column, the height of the rise in the mercury column, we can calculate the pressure of gas. Okay. अब इसमें कैलकुलेशन कैसा होगा? इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस. नाउ वी नो दैट प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. दैट इज अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मर्क्यूरी कॉलम अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम. ओके, सो यहां से लेके जो ये राइज हो रहा है ट्यूब, सपोज हम लोग इस ट्यूब को कहीं पर फिक्स करते हैं, इफ यू फिक्स दिस ट्यूब एट अ सर्टेन हाइट, और यहां से जो राइज हो रहा है h, दिस इज द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम फ्रॉम द बेस, फ्रॉम हियर, एंड वी नो दैट सिंपल फॉर्मूला दैट प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. नाउ दिस फोर्स इज डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मर्क्यूरी कॉलम. ओके, इट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम अपॉन एरिया. और याद रखना कि दिस पार्ट इज नथिंग बट अ वैक्यूम. इट्स अ वैक्यूम एरिया. तो जैसे ही यहाँ पर एयर प्रेशर आएगा, मर्क्यूरी का लेवल राइज होगा. And we know that pressure is nothing but force upon area. So this force is nothing but downward force of the mercury column, and this is area of cross section of the mercury column. Now force is nothing but what? Mass into acceleration due to gravity upon A, that is area of cross section. Okay. Now what is mass? Basically mass क्या होता है? Mass is nothing but volume into density. So we can write down, because density is nothing but mass upon volume. So mass is nothing but what? Volume into density into acceleration due to gravity upon area. Now what is volume? The tube, the volume is nothing but area of cross section into height. So we can write down that volume is nothing but area of cross section into the height of the mercury column into d into g upon area of cross section. So this get cancelled out. So finally pressure is nothing but h d g. That is height of the mercury column, the rise of the mercury column. D is the density of mercury. We take it standard density as 13.596, and G is nothing but the acceleration due to gravity. Now, when you use this formula, you can easily calculate what is the pressure of a particular gas. Now, according to international agreement, the standard pressure is taken as 1 atm. And whenever the air pressure is 1 atm, the rise in the mercury column, जब भी एयर यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा 1 atm का, the rise in the mercury column is 76 centimeter, or can also be called as 760 millimeter of mercury. Okay, इतना राइज होता है जब 1 atm प्रेशर एक्सर्ट होता है उसके ऊपर. ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम लोगों ने टेम्परेचर क्या सिलेक्ट किया इसका? 0 डिग्री सेल्सियस. दैट इज द स्टैंडर्ड temperature. Now when you use these values in this area, in this formula, you can easily calculate the pressure in Newton per meter square. If you remember, this is a SI unit of pressure, that is nothing but the Pascal, also called as Pascal. Newton per meter square, force upon area, Newton upon meter square, that is a unit. तो इसमें आपको वैल्यू मिल सकता है. मतलब अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm pressure is 76 centimeter, okay, or 760 millimeter. Now 76 centimeter can also be written as 0.76 meters. So height मैंने suppose ये डाला है standard pressure की 0.76. Density हो जाएगा 13.596 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. This is the density of mercury in SI unit. Okay. And 9.8 meter per second square is the value of acceleration due to gravity. जब ये value आप substitute करोगे, you get a value of pressure that comes to 101,325 kilogram per meter per second square. Okay. Now kilogram per meter per second square is basically a Newton per meter square. ये पूरा वैल्यू क्या है? बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो दिस इज नथिंग बट 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
Okay, that can also be written as 101.325 into 10 raised to 3 Newton per meter square, also called as Pascal. So if we write a value of 1 atm, बराबर देखो 1 atm, you need to remember certain value. So if I talk about 1 atmospheric pressure, that will be equal to 76 centimeter of mercury column, or it is equal to 760 millimeter of mercury column, or it is nothing but 101.325 into 10 raised to 3 Newton per meter square or Pascal. Also, remember with the calculation that 0.987 atm, that is equal to 1 बार प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये भी एक यूनिट है बार प्रेशर. ओके, और अगर इसका उल्टा कर दोगे, सो 1 बार प्रेशर का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग 10 raised to 5 पास्कल भी लिख सकते हैं. दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 10 raised to 5 पास्कल. गाइस बराबर देखना, 1 atm is 101.325 10 raised to 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बेसिकली 1 atm आपका 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी हम लोग इसकी जगह पे पास्कल लिख सकते हैं. एंड 0.987 इज 1 बार बेसिकली. क्लियर है? अब ये जो वैल्यू होता है, ये अगर बार में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो दैट कम्स टू 10 raised to 5 पास्कल्स, 1 बार प्रेशर. और 0.987 is equal to 1 bar. And also, since the barometer is designed by Evangelista Torselli, you have to remember 760 millimeter is nothing but equal to 760 torr pressure, because 1 millimeter is 1 torr. 1 millimeter 1 torr. ये किसके नाम पे हुआ है? Evangelista Torselli के नाम पे. So this is the value of 1 atmospheric pressure, and remember 1 atmospheric pressure is considered as standard pressure, 1 atm pressure. So if I say what is the value of 1 atm pressure, 1 atm is nothing but 76 centimeter or 760 millimeter of mercury, or 101.325 Pascal, और 1 atm के लिए हम लोग इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 760 torr. ऑल्सो 0.987 atm इज इक्वल टू 1 बार. तो इसको ऑलमोस्ट हम लोग कंसिडर करते हैं कि 1 atm इज इक्वल टू 1 बार. बट अगर इसका आप रिवर्स वैल्यू लोगे, दैट 1 atm, तो इट कम्स टू 101.325, उसके वैल्यू में आ जाएगा. That is the value of 1 bar. To remember that, because 1 bar जो होता है वो 10 raised to 5 pascals हम लोग लिखते हैं with respect to the conversion. So you have to remember these conversions, and you have to remember कि किस तरीके से प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, that is nothing but the force exerted per unit mass of the column of air, that is atmospheric pressure. बट हाउ विल यू मेजर अ प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर? तो अगर कोई कंटेनर में गैस है तो उसका प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? तो दैट इज कनेक्टेड टू अ यू शेप ट्यूब, ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ मर्क्यूरी इन इट, ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ मर्क्यूरी इन इट. यहाँ से गैस आके अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा और मर्क्यूरी का लेवल इसमें राइज होगा. अब ये यू शेप ट्यूब जो आप कनेक्ट कर रहे हो, सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस, मैंने यू शेप ट्यूब लिया है. ओके, ये ओपन, दिस यू शेप ट्यूब इज कॉल्ड एज मैनोमीटर. ये एक ओपन मैनोमीटर है, इसमें हम लोगों ने गैस मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं. नाउ दिस विल हैव मर्क्यूरी इनसाइड, कंप्लीटली फिल्ड विद मर्क्यूरी. तो ये मर्क्यूरी से फिल्ड रहता है. अच्छा, यहाँ पर कौन सा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? एयर प्रेशर. तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पर कौन सा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? गैस प्रेशर. अगर दोनों मर्क्यूरी के कॉलम लेवल्ड है, बराबर है, मतलब बाहर का जो प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू गैसियस प्रेशर इनसाइड द ट्यूब. बट सपोज व्हाट हैपन कि इफ द मर्क्यूरी कॉलम राइजेस हियर, अगर ये राइज होना चालू हो गया तो यहाँ से ये थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब गैस प्रेशर थोड़ा ज्यादा है. सो वी कैन राइट डाउन दैट हियर इन दिस केस गैस जो अंदर से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज मच मोर ग्रेटर देन दी atmospheric pressure. So here in this case the gas pressure will be equal to atmospheric pressure plus the height. और वो कहाँ से मेजर होगी? देखो यहाँ पर इसका लेवल था, ये लेवल यहाँ तक राइज हुआ, तो यहाँ का जो मैं डिफरेंस निकाल के ये जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम. ओके,
नाउ समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि गैस प्रेशर कम हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो, तो इस साइड पे राइज होगा. सो एट दैट टाइम द गैस प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस बिहाइंड. So using this you can easily calculate what the pressure of gas. अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत लो है, सो यू कैन ऑल्सो यूज क्लोज मैनोमीटर. कब यूज करने का? जब गैस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तो यू कैन यूज अ क्लोज मैनोमीटर. So manometer is a device which is used to measure pressure of a gas inside a cylinder or inside a container, and the barometer is a device which is used to measure a pressure, atmospheric pressure. Okay, and as we take this barometer to the different heights from the sea level, the atmospheric pressure will decrease. So you get a lower value, you don't get a value, and the standard pressure has been selected as what 1 atm. Guys, इसमें से आपको कुछ एग्जाम के लिए आएगा नहीं, ये वैल्यूज सिर्फ आपको याद रखनी है, and concept behind that. You don't need this conversion, you don't need this calculation. This is just for your explanation कि अगर हमको ये रिलेट करना है कि ये डिवाइस प्रेशर कैसे मेजर करता है, तो प्रेशर इज नथिंग बट the downward force of the mercury column upon area, and then you use a certain mathematical equation to get that pressure is nothing but equal to height of the mercury column from the base point into density of the mercury into acceleration due to gravity, and we select standard pressure as 1 atm, where the rise of the mercury column is 76 centimeter or 760 millimeter. So this is how you will calculate the pressure of gas. Now the fourth property is temperature of gas. We know that temperature measure करना है, thermometer is the best device to measure temperature. Temperature की unit क्या होते हैं? You can be measured in degree Celsius, Kelvin, the SI unit, or you can measure in degree Fahrenheit. Okay. Now standard temperature. अच्छा, वो उससे पहले हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं. अगर मुझे टेम्परेचर कैल्विन में चाहिए, अगर डिग्री सेल्सियस दिया और कैल्विन में चाहिए, सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये ऐड करोगे सो गेट इन कैल्विन. फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस लिया तो इट इज 273.15 कैल्विन होगा. 1 डिग्री 274.15 कैल्विन होगा. ओके, सो दैट इज अ कन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू दी. नाउ डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है, तो डिग्री सेल्सियस इज 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ये भी इसका कन्वर्जन. अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना डिसाइड किया है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिसाइड एज 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स इट इज 273.15 Kelvin, and standard pressure is 1 atm. So you need to remember certain condition. The first condition is STP condition, standard temperature and pressure, and with respect to the international agreements in values of chemistry, the standard temperature is taken as 0 degree Celsius, that is 273.15 Kelvin. अब सारा कैलकुलेशन कैल्विन में करते हो. Standard pressure is taken as 1 atm, and 1 atm is nothing but these values written. So that's standard pressure. So if any gas is at 1 atm pressure and 0 degree Celsius, matlab that gas is at STP condition. And at STP condition, 1 mole of a gas occupies a volume of 22.4 liter. आपको याद होगा ये values हम लोगों ने देखा है कि gas at 1 atm pressure and 0 degree Celsius, that is STP condition, the volume of a gas occupied by is 22.4 liter. That is with respect to the old conversion, but new conversion के हिसाब से it is around 22.7 liters. but हम लोग ये लेके चलते हैं 22.4 liters. ओके, ये लेके चलते हैं, but new conversion के हिसाब से वो 22.7 liters है. Okay, remember that. So this is called as molar volume. So if I ask you कि 1 mole of a gas at STP कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4, बट न्यू क्या है 22.7 है, याद रखने का. ओके, नाउ देयर इज वन मोर कंडीशन you have to remember, standard ambient temperature pressure. Standard ambient temperature pressure. If it is written standard ambient temperature pressure, तो वहां पर standard temperature 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वहां पर टेम्परेचर होता है 298.15 Kelvin. याद रखने का, इसमें टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 298.15 Kelvin. That is room temperature. Okay,
25 डिग्री सेल्सियस। एंड इस कंडीशन में जो प्रेशर हम लोग यूज करते हैं, दैट प्रेशर इज बेसिकली 1 बार प्रेशर। यहां पर भी हम लोग 1 बार प्रेशर ही लेते हैं, बेसिकली 1 बार प्रेशर ही लेते हैं। 1 बार प्रेशर इज 0.987 ATM। इसके लिए हम लोग ऑलमोस्ट 1 ATM लेके चल रहे हैं कैलकुलेशन में। यहां पर भी हम लोग प्रेशर ले रहे हैं 1 बार एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 0.987 ATM। 0.987 ATM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ATM फॉर द कैलकुलेशन। तो याद रखने का, इफ आई से STP कंडीशन 1 बार, सर 1 ATM प्रेशर, actually 1 bar is 0.987 है, but for the calculation 1 ATM pressure. So standard condition is 1 ATM pressure. STP 1 ATM pressure, 0 degree Celsius, volume occupied by the gas is 22.4. न्यू कन्वर्जन से 22.7 होता है, बट हम लोग के बुक से हिसाब से 22.4 लेके चलते हैं फॉर कैलकुलेशंस। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर है तो प्रेशर वही लेगा, बट टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रूम टेम्परेचर 298.15 केल्विन। सो दीज आर फ्यू measurable properties of gases. Now I'll rub this out. We can start with the after this we can start with different laws of gases. Hello guys, let's start with the different gas laws in states of matter. There are basically 4 gas laws we're going to discuss today: Boyle's law, Charles' law, Avogadro law, Gay-Lussac's law. When you combine all these 4 laws together, you will get a equation that is called as combined gas equation or ideal gas equation. And in some basic concept of chemistry, you have heard about the equation as PV is equal to nRT. So we are going to frame this PV is equal to nRT for a gaseous system. The first law we're going to discuss is Boyle's law. So let's talk about Boyle's law. Now, what is Boyle's law? Now, let us consider a container. It is fitted with weightless, frictionless, airtight, movable piston. So it consists of a piston. This is a freely movable, airtight, weightless piston. It can move, and the gas is enclosed in it. Now this is nothing but the volume of gas, V1. Now temperature is kept constant. Now when we apply external pressure, the piston will move in the downward direction. Suppose वो piston move होके यहाँ पर आ गया. So now this will be the volume of gas. If you see properly, when you apply a pressure, the volume of gas decreases. Means the pressure is inversely proportional to volume of gas. But the temperature should be kept constant to understand this law. To understand the nature of gas with respect to pressure and volume, the third parameter, temperature, is kept constant, as well as the total number of moles of gas is constant. So mass of a gas is constant, temperature is constant. So when temperature and mass of a gas is constant, then the applied pressure will definitely decrease the volume of gas. So we can say, in case of Boyle's law, we can say at constant temperature, and also the mass of gas is constant, pressure of the gas is inversely proportional to the volume. Pressure applied is inversely proportional to the volume of gas. Okay, when you remove this proportionality sign, you introduce a constant. So we write down P is equal to K into 1 upon V, where K is a constant. So when you multiply, when you move this B to the left hand side, it becomes PV is equal to K. So we can also say that the product of pressure and volume at constant temperature for a given mass of a gas always remain constant. So अगर मुझे एक ideal graph बनाना है by taking a PV, pressure, volume का product on y axis, okay, और x axis पे मैंने क्या किया है, with respect to pressure मैं यहाँ पर plot करूँगा 1 atm, 2 atm, 3 atm, जितना pressure मैं apply कर रहा हूँ. So whenever apply a pressure,
the PV will always remain constant. Okay, so the product of pressure and volume will always remain constant. So at two different in the same system, when you apply two different pressure, two different volume, we get P1 V1 will be equal to what? P2 V2 will always be a constant. Okay, for example, आपने 1 atm pressure apply किया है. Okay, when you apply a 1 atm pressure, suppose, or you apply a 2 atm pressure, suppose 2 atm pressure आपने apply किया, volume of the gas was observed to be 112, ठीक है, meter cube. This is the volume of gas. फिर आपने सेकेंड प्रेशर और प्रेशर अप्लाई किया, सपोज 2.5 प्रेशर आपने बढ़ा दिया. So now the volume of gas decreases and it becomes 89.2. Okay, now when you find the product with respect to pressure and volume, that comes to 2, 2 and 4, 224 meter cube ATM. Clear है? इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इट अगेन्स कम अराउंड 203. सो ऑलमोस्ट द वैल्यूज कांस्टेंट आ रहे हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहे हैं. सो इसका मतलब आपने जब प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम इतना मिला, फिर आपने प्रेशर थोड़ा बढ़ाया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा, लेकिन जब भी आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे द वैल्यू रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट. सो वी कैन से क्लियरली कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. इन द सिंपल मैनर PV is equal to K. So P1 V1 is equal to P2 V2. You can use it for two different pressure to find one unknown volume if one of the volume is given. But you have to remember कि the entire process is taking place at a constant temperature. Why? क्योंकि अगर आप temperature बढ़ाओगे तो kinetic energy of the gaseous molecule will increase. It will start colliding with the walls of the piston container as well as the piston, and the piston will move in the upward direction. तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑब्वियसली गैस एक्सपांड होगा तो पिस्टन मूव होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. तो आपको टेम्परेचर लॉक करके रखना है. या टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो गैसियस मॉलिक्यूल और साथ में आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, द वॉल्यूम विल डिक्रीज. सो यू हैव टू कीप अ टेम्परेचर कांस्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, बिकॉज इफ द टेम्परेचर इज चेंज, वॉल्यूम द गैस विल चेंज एंड द प्रेशर विल ऑल्टर. सो दैट्स द थिंग. This is about Boyle's law in a very simple manner. At constant temperature for a given mass of a gas, the pressure of the gas is inversely proportional to the volume. The pressure applied on the gas is inversely proportional to the volume of the gas. Okay. Now, so you can use this formula for mathematical calculations. Now, you can also derive it for the density. We know that density of a substance is nothing but mass upon volume. So volume is nothing but what? Mass upon density. So we can write down that P is equal to K 1 upon, now in place of volume you write down what? Mass upon density. Density goes into the numerator. Okay. Now for a given gas, the mass is constant, the K is constant. So these two are constant. So constant upon constant will give rise to a new constant, that is K dash to D. When you remove the constant, you get pressure is directly proportional to what? Density of the gas. Okay, the pressure is directly proportional to the density of gas. ज़्यादा dense gas है, pressure ज़्यादा लगेगा उसके लिए. Lighter gas easily compress होगा. So density का भी relation हम लोग इससे निकाल सकते हैं. तो P is directly proportional to what? D. So अगर आपको Boyle's law में question दिया है, but उसमें density include कर दिया है question के अंदर, so you can relate this and can solve the numerical. So it will be basically P1 upon D1 is equal to what? P2 upon D2. Sorry, D2. You get this value a constant. So you can use this as a relationship if the density is given to us. Okay. Now let us talk about graph. Graphs. The first graph we are going to discuss is pressure volume graph. When you increase pressure, the volume of gas should decrease. So it is volume versus pressure. So मैंने ग्राफ प्लॉट किया. इस पे बराबर ध्यान देना. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स I'm going to discuss in this graph. वॉल्यूम सपोज हम लोग ने प्लॉट किया y axis in meter cube, pressure in ATM on x axis. Okay, we plot a graph and the pressure is very low. Suppose the pressure बहुत कम है, the volume is very high. Okay, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है गैस का. Now as you increase pressure, what happens to the volume? The volume will decreases. देखो ये decrease हो जाएंगे वॉल्यूम. ये different मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं वॉल्यूम के. देखो decrease होते जा रहा है. Like this. See properly. See, these are the different
वॉल्यूम. सो अगर मैंने इन डॉट्स को ज्वाइन किया, जो मुझे प्लॉट्स मिले हैं ग्राफ में, if I join them from here, these are the plots which I get. See, if I join them, I can clearly see as the pressure increases, the volume of the gas decreases. It is decreasing. Okay, so decreasing. So it's very simple to understand कि जैसा pressure increase हो रहा है, volume of the gas क्या हो रहा है, decrease हो रहा है इसके अंदर. But see properly, बराबर से नोटिस करना, इस ग्राफ में लीनियर डिक्रीज नहीं है. लीनियर डिक्रीज कब होगा? व्हेन दिस ग्राफ फ्रॉम दिस पॉइंट विल फॉलो अ लीनियर डिक्रीज. सो दिस शुड बी द आइडियल लीनियर डिक्रीज. बट ग्राफ में देखो लीनियर डिक्रीज ऐसा नहीं बता रहा है. नीदर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टेकन एज जीरो. सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कंटेनर में गैस है, आप पिस्टन अप्लाई कर रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है. ओके, hypothetically when you apply 1 atm pressure, volume decrease by suppose 1 ml, फिर 2 atm then again 1 ml, 3 atm then again 1 ml, like uniform linearly it is decreasing, the volume is decreasing linearly. But at a time it will happen when the pressure is more, the gases come very close to each other. When they come close to each other, few molecule of the gases, when they come close to each other, they develop intermolecular force of attraction. And when they develop intermolecular force of attraction, they will change their state. So might be ऐसा हुआ होगा कि few molecules of the gases at a little bit of intermediate pressure, they have intermediate pressure, not low pressure. Low pressure पे तो वो linearly decrease हो रहा है, but intermediate पे आने के बाद आपको PV constant नहीं मिल रहा है. उसका reason क्या है? Linearly decrease क्यों नहीं हो रहा है? Because when the pressure is increased, at some point the gaseous molecule, when they come close to each other due to the compression, they develop intermolecular forces, and when they develop intermolecular forces, they will liquefy. मतलब अगर मैंने 1 लीटर का गैस दिया है तो अगेन सर्टेन प्रेशर पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हो, गैस लीनियरली डिक्रीज हो रहा है सर, बराबर से डिक्रीज हो रहा है, एवरी टाइम गेटिंग अ कांस्टेंट वैल्यू. बट एट अ सर्टेन पॉइंट few amount of gas molecule will liquefy. तो अब टोटल वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ गैस में से कुछ लीटर गैस, few लीटर ऑफ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. तो अब लिक्विड पे, लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, सो लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. दे आर नॉट कंप्रेसिबल. वेरी लिसन, दे आर नॉट कंप्रेसिबल. गैस कंप्रेसिबल है, तो जो आपका गैस बचेगा वो गैस 1 लीटर से कम होगा. तो अब जो वैल्यू आएगा आपका वॉल्यूम डिक्रीज होने का, वो एक्चुअली में सेम लीनियर डिक्रीज का वॉल्यूम नहीं आएगा. सो यू डोंट गेट अ लीनियर डिक्रीज, यू गेट अ कर्व इन द एंड, बिकॉज व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीजेस, व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर, the gas molecule come close. When the gas molecule come close, they will liquefy, and when they liquefy, they are not compressible. तो अब वहां पर ग्राफ सिर्फ आप बना रहे हो गैस के लिए. तो see properly, here you don't get a linear decrease, because at this point we can say the gas molecules, a few gas molecule will try to liquefy at this point. ठीक है, therefore you don't get a linear decrease of the volume. So this is a condition where the pressure is very less. The pressure is very less. यहाँ पर less pressure है. फिर जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, गैस आइडियल बिहेवियर क्या होना चाहिए? लीनियर डिक्रीज. आइडियल बिहेवियर से डिविएट करता जा रहा है, लीनियरली डिक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज एट अ वेरी हाई प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू डेवलप intermolecular force of attraction. They can be any dipole, they can be hydrogen bonding, they can be dispersion forces, and because of which they can liquefy. And if they change their state, they are not compressible, so you cannot study gas laws in liquids. So that is the reason from here you don't get a linear decreases, but you get a curve. And plus the volume को जीरो नहीं बताया ग्राफ में, बिकॉज आप उसको जीरो लेके नहीं जा सकते, बिकॉज एक पॉइंट पे आने के बाद जब बहुत ज्यादा पिस्टन नीचे चले जाएगा, सपोज एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे आने के बाद आप पिस्टन को टच नहीं करा पा रहे हो, आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो और ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है. व्हाई? बिकॉज हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स. द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्रेसिबल, दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर इन टर्न. तो इससे ज्यादा आप नहीं जा रहे, पिस्टन टच नहीं कर पा रहे सरफेस पे, बिकॉज हियर देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ दोज लिक्विड मॉलिक्यूल्स. सो कंप्रेशन कहीं ना कहीं रुक जाएगा. सो एट अ वेरी हाई प्रेशर the gas deviates from the law. So you need to remember कि gas obeys very important point.
gas obeys Boyle's law at low pressure. At high pressure, they will develop intermolecular forces. They will try to convert into a liquid, and they become non-compressible. So you cannot study that law in that case. Okay. So you have to remember this very important point that gas obeys Boyle's law at low pressure. At high pressure, it deviates. Okay, तो उतना compression नहीं हो पाएगा. Now, suppose ये हम लोग ने ग्राफ निकाला है. This graph, we plot a graph. Suppose एग्जाम के लिए 300 केल्विन पे, constant temperature पे. Okay, the temperature should be constant. What if the graph is plot against 400 केल्विन? तो 400 केल्विन का आपने टेम्परेचर ले लिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, उस पर पूरा लॉ ऑफ स्टडी कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होते जा रहा है, तो उसका ग्राफ कहां पर प्लॉट होगा, अबव दिस और बिलो दिस. सो रिमेंबर वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं कि ग्राफ कहां आएगा, अबव दिस और बिलो दिस, सो ट्राई टू यूज अ सिंपल रिलेशन इन बॉयल्स लॉ, कि अगर मैंने टेम्परेचर 400 कर दिया तो ग्राफ किधर पे आएगा, सर इसके नीचे बनाओगे आप इसके ऊपर बनाओगे, तो क्या करने का वो टाइम पे किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट कर देने का. सपोज मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी मैं वॉल्यूम से टेम्परेचर का रिलेशन ढूंढूंगा. मैं किसी में पूछूंगा कि अगर मैं हीट करूं गैस को तो व्हाट हैपेंस टू द गैस, इट विल कंप्रेस, इट विल एक्सपांड, इट विल एक्सपांड ऑब्वियसली. व्हेन इट विल एक्सपांड बिकॉज ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, इट विल एक्सपांड. व्हेन इट एक्सपांड्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज, मतलब हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. तो अगर मैं एक प्रेशर कांस्टेंट लेता हूं, सपोज ये प्रेशर मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो 300 केल्विन पे इतना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है. लेकिन अब 400 केल्विन लोगे सेम प्रेशर पे, तो वॉल्यूम इतना नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम उससे ज्यादा होना चाहिए. क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल आल्सो व्हाट इंक्रीज, ठीक है. तो 400 पे सेम प्रेशर पे 300 केल्विन पे वॉल्यूम इतना है, सेम प्रेशर पे 400 केल्विन पे ऑब्वियसली वॉल्यूम ज्यादा होगा 300 से, बिकॉज ये जो वॉल्यूम है, सपोज ये 2 लीटर है और ये वॉल्यूम है सपोज 3 लीटर है, तो 2 लीटर आपका 300 पे, तो 400 पे 3 लीटर है, ज्यादा ही होगा उससे. तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ देखो उसके ऊपर आएगा, तो 400 केल्विन का ग्राफ उसके ऊपर आ रहा है, सी. इससे कम रहेगा तो ग्राफ नीचे आएगा. सो यू हैव टू मेक वन पैरामीटर. मैंने प्रेशर कांस्टेंट किया, वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन निकाल दिया, लाइक दैट यू नीड टू सॉल्व इट आउट. Okay. Now the second graph is PV versus P. जो मैं पहले ही PV लिख रहा हूं, that is on y-axis. On the x-axis, this is the constant value of pressure volume. Now we know that from the law that PV always remain constant. हमेशा ये value constant होगा. So इसका ग्राफ के लिए it will be a straight line parallel to x-axis. कोई भी प्रेशर पे P इंटू वी कॉन्स्टेंट रहने वाला है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, 2 मल्टीप्लाई करके गेट इज ऑलमोस्ट सेम वैल्यू. बट सपोज ये ग्राफ 300 केल्विन पे, व्हाट ऑफ द ग्राफ इज एट द हाई टेम्परेचर, अगेन प्रेशर को लॉक कर दो इस वैल्यू पे, कांस्टेंट प्रेशर. तो एट दिस कांस्टेंट प्रेशर 300 केल्विन, द प्रोडक्ट ऑफ P एंड V इज दिस मच. बट इफ आई से 400 केल्विन, तो 400 केल्विन पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे gaseous volumes are more. तो if the volume is more, PV is more, तो 400 केल्विन पे सेम प्रेशर पे यहीं कहीं आना चाहिए. तो ये आपका हो गया ग्राफ 400 केल्विन के लिए हायर टेम्परेचर पे. ओके, सो हियर T2 is 400, T1 is 300. So when you increase temperature, you get a graph above this. इसके ऊपर remember. Now the third graph is 1 upon V, 1 upon volume, reciprocal of the volume versus pressure. See properly, P is inversely proportional to volume or P is directly proportional to reciprocal of the volume. See, हम लोग ऐसा भी पढ़ सकते हैं ना, pressure is directly proportional to the reciprocal of the volume. So अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, that is 1 upon V upon P, so pressure is directly proportional to the reciprocal. मतलब अगर pressure बढ़ेगा तो 1 upon V increase होगा, so you get a straight line here. Okay, passing from the origin. Because अगर मैं इसको बराबर से सॉल्व करूं, बराबर देखना है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को we can write down that P is equal to K into 1 upon V plus 0. Okay, now suppose मैंने ये ग्राफ को अगर एक्सचेंज कर दिया तो भी एक ही बात हो जाएगी. अगर मैंने यहाँ पर प्रेशर लिया और यहाँ पर 1 upon ले रहा हूँ, 1 upon V ले रहा हूँ, सेम थिंग.
See this graph in the form of y is equal to mx plus c. This is an equation of straight line where c is the y-intercept. But if c is 0, graph starts from origin, slope is positive, तो increasing होगा. अब बराबर देखोगे कि स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, c 0 है, तो c 0 मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्लोप पॉजिटिव है, तो here you will get a straight line passing from the origin where the slope value of this line will be equal to k. Okay, 1 upon v. बट सपोज ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया 300 केल्विन पे, 400 केल्विन पे ग्राफ कहाँ होगा, तो 400 केल्विन पे. सिंपल लॉजिक है, व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज बट 1 अपॉन v डिक्रीज. वॉल्यूम इंक्रीज बट 1 अपॉन v डिक्रीज. सो एट अ कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दे रहा हूं, देखो इसमें प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूं, 300 केल्विन पे 1 अपॉन v का वैल्यू आ रहा है. एट दिस प्रेशर 1 upon v value is this at 300 Kelvin. But if I increase temperature, v will increase, but 1 upon v in calculation will decrease it. अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल वैल्यू तो कम ही होगा. v increases 1 upon v decreases. मतलब at same pressure at a high temperature 1 upon v कम आना चाहिए. देखो कम आएगा. तो now graph goes like this for 400 Kelvin. This is T2, this is T1. देखो अगेन किधर पे आ रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है. सो यू नीड टू रिमेंबर इन दिस, इन बॉयल्स लॉ जब भी मैंने टेम्परेचर चेंज किया, मैंने क्या किया, तीनों ग्राफ में सॉल्व करने के लिए प्रेशर कांस्टेंट लिया, वॉल्यूम का रिलेशन निकाल लिया, प्लस ऑल द गैसेस विल ओबे बॉयल्स लॉ only at low pressure. At high pressure they deviates. Why they deviate? They don't get a constant value. They don't get a constant decrease in the volume. Why there is no constant decrease in the volume? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि they try to develop what? Intermolecular forces, and when they develop intermolecular forces, they liquefy and liquids are not compressible. So simple याद रखना है कि low pressure पे हम लोग ने गैस एक कंटेनर में लिया है, आप 1 atm प्रेशर का अप्लाई करो. सपोज if you apply 1 atm pressure, the gas volume decreases suppose by supposition 1 ml, फिर 1 ml डिक्रीज हो रहा है, फिर 1 ml डिक्रीज हो रहा है, फिर 1 ml डिक्रीज हो रहा है. लेकिन एट 7 atm प्रेशर अब डिक्रीज हो रहा है 0.8 ml, फिर डिक्रीज हो रहा है 0.6 ml, फिर डिक्रीज हो रहा है 0.5. मतलब आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, बट जो डिक्रीज होना चाहिए, जितना अमाउंट डिक्रीज होना चाहिए उससे ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, उससे कम डिक्रीज हो रहा है, इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है. मतलब फ्रॉम 1 to 5 atm 1 ml का डिक्रीज हुआ, फिर 6 atm से 0.9, 0.8, 0.6, 0.5 ऐसा डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम. आप 1 atm ही बढ़ा रहे हो प्रेशर, बट वॉल्यूम 1 ml डिक्रीज नहीं हो रहा है आफ्टर 5 atm. क्यों? बिकॉज गैस मॉलिक्यूल गेट कंप्रेस, दे डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. व्हेन दे डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे लिक्विफाई and liquids are not compressible. So you need to remember कि a gas will obey gas law at low pressure. Okay, Boyle's law at low pressure or gas law at low pressure. At high pressure they will develop intermolecular forces and they show the deviation from the gas laws. Okay, और कभी कभार ऐसा होता है कि गैस में एक हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से वो एक्सपांड हो जाते हैं, सडनली द प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस, वो कंटेनर बर्स्ट हो गया सपोज, तो वहां भी ओबे नहीं कर रहा है. सो लो प्रेशर में ही गैस कोई भी लॉ को ओबे करता है, उसके हाई प्रेशर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप करने की वजह से दे डिविएट्स फ्रॉम द गैस लॉ. सो दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ. द नेक्स्ट लॉ इज अ चार्ल्स लॉ. रब दिस आउट. So if I say a gas obeys Boyle's law, means a gas is behaving ideally. You need to listen to this. A gas is behaving ideally with respect to Boyle's law. अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि गैस फिक्स्ड अमाउंट में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जब प्रेशर आप फिक्स्ड अमाउंट में अप्लाई कर रहे हो, तो आप बोलेंगे सर वो गैस बॉयल्स लॉ को ओबे कर रहा है. यस, so I can say, in other words, the gas is behaving ideally with respect to Boyle's law. So any gas in this nature is real gas, but they can behave ideally with respect to Boyle's law at low pressure. दुनिया में जितनी भी गैस होती है सब रियल गैस होती है, कोई भी आइडियल गैस नहीं होती. बट अगर वो बॉयल्स लॉ को ओबे कर रहा है तो वो आइडियली बिहेव कर रहा है. तो वी कैन से गैसेस in nature are real gases, they can behave ideally. कैसे?
बाय ओबेइंग बॉयल्स लॉ। एट व्हाट कंडीशन? लो प्रेशर। हाई प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप करेगा या सडन एक्सपांशन हो जाएगा। नाउ द सेकंड लॉ which we are going to discuss is Charles law. Charles law. Now, Boyle's law gives a relationship between pressure volume at constant temperature. Charles law में आपको क्या करना है, ये बार प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, और हम लोग फाइंड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब मैं आपको सिंपल पूछूंगा कि सपोज मैंने गैस ली है एनक्लोज इनटू अ कंटेनर फिटेड विद अ वेटलेस फ्रिक्शनलेस एयरटाइट मूवेबल पिस्टन, अ गैस इज एनक्लोज्ड हियर, द एक्सटर्नल प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। आई एम मोर फोकसिंग ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। आप प्रेशर अप्लाई कर ही नहीं रहे हो, बिकॉज वर्क के लिए एक्सटर्नल प्रेशर जरूरी है, इंटरनल प्रेशर नहीं। इसके लिए एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ कंसिडर किया, याद रखने का। एक्सटर्नल प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, ये आप चेंज नहीं कर रहे हो। अच्छा, आपने क्या किया, दिस इज कांस्टेंट। आपने क्या किया, ये गैस का वॉल्यूम था V1 एट टेम्परेचर T1, आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर T2 किया, वे T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया। सो व्हाट हैपेंस टू द गैस मॉलिक्यूल, दे विल गेट greater kinetic energy, so they will start colliding with the walls of the container as well as with the piston, and the piston is freely movable. So because of the gas pressure, the piston will move in the upward direction. वो piston इधर आ गया, so now this is nothing but V2. So clearly V2 is greater than what V1. So हम लोग यहाँ पर क्या लॉ लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड में लॉ का स्टेटमेंट ये रह सकते हैं कि at constant pressure for a given mass of a gas, volume is directly proportional to temperature of the gas, or temperature is directly proportional to the volume of the gas. The simple condition. But law को किस तरीके से फ्रेम किया है बुक्स में, वो बराबर देखना जरूरी है। It says for, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, given mass of a gas at, ध्यान देना, constant pressure, volume of gas increases or decreases by 1/273 times of initial volume or original volume. The volume of the gas increases or decreases by 1/273 times of the initial volume for every degree rise or fall in temperature. So statement क्या है, for a given mass of a gas at a constant pressure, the volume of gas increases or decreases 1/273 times the original volume for every degree rise or fall in temperature. For every degree rise or fall in temperature. इसको समझने के लिए एक सिंपल आपको कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान से कंडीशन सुनना, कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है इसको समझना, इट्स वेरी इजी। सपोज ये लॉ क्या बोल रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सपोज दिस इज अ कंटेनर, हम लोग ने पिस्टन लिया है, ओके, this is a gas enclosed in it, the pressure of the gas, external pressure is kept what, constant। आप प्रेशर बाहर से कोई अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। सपोज ये गैस जो है, इसका वॉल्यूम V0 है, इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके, और टेम्परेचर हम लोगों ने ले लिया है T0, इनिशियल प्रेशर, ये सॉरी इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। नाउ सपोज ये आपका जो T0 है, दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस गैस जो है वो माइनस में लिक्विफाई होगा सपोज। अब आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, कितना बढ़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया। सो बराबर देखना, ये पिस्टन का वॉल्यूम का, अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, दिस पिस्टन विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सपोज वो पिस्टन इधर आ गया,
ओरिजिनल लेवल से थोड़ा ऊपर, यहां पर ओरिजिनल लेवल था, इससे थोड़ा ऊपर आ गया पिस्टन। सो नाउ दिस इज द न्यू वॉल्यूम। सपोज ये वॉल्यूम आपका 1 डिग्री है तो दिस इज V1, 1 डिग्री पे आपने निकाला तो सपोज दिस इज V1। नाउ इफ यू आस्क मी कि व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वॉल्यूम, वेल अकॉर्डिंग टू द लॉ इट सेज दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस V1 विल बी, देखो ये आपका इनिशियल लेवल, तो दिस इज V0, द इनिशियल लेवल ऑफ द गैस, प्लस पिस्टन ऊपर गया क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट किया है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये एक वॉल्यूम भी कवर हो रहा है, हाँ ये वॉल्यूम भी कवर हो रहा है, तो ये कितना है? सो दिस वैल्यू इज 1/273 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स इंक्रीज होगा। सो ये आप टोटल V1 क्या हो गया? V0 प्लस V0 इंटू 1/273, ये आपका रिजल्टेंट वॉल्यूम है व्हेन देयर इज ए 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सपोज आपने -1 डिग्री लेके चले गए 0 डिग्री से, मतलब कूल कर दिया, तो ऑब्वियसली पिस्टन यहां आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। सो आप माइनस के बदले क्या लिखोगे, सॉरी प्लस के बदले क्या लिखोगे? माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट दिस वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, ओरिजिनल से कम हो गया। कितना कम हो गया? 1/273 टाइम्स ऑफ V0 कम हो गया, तो माइनस आ जाएगा। बट फिल वक्त के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं राइज इन टेम्परेचर, तो ठीक है, सिंप्लीफाई करते हुए। नाउ सपोज इफ आई से इट राइज टू 2 डिग्री, मतलब आपने एक 1 डिग्री बढ़ा दिया यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? अरे पिस्टन थोड़ा और ऊपर जाएगा। सो कैन आई से दैट द वॉल्यूम एट 2 डिग्री विल बी इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू 1/273 प्लस V0, क्योंकि एक बार पिस्टन ऊपर जाएगा, कितना? V0 अपॉन 1/273 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, पहले काम करो, V0 को कांस्टेंट निकालो। सो नाउ V2 विल बी, वॉल्यूम एट 2 डिग्री विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री प्लस आपने V0 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? 2/273। ओके, समझो ये V3 होता 3 डिग्री पे, तो V0 प्लस V0 इंटू 3/273। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर मैं इसको VT पे निकालता हूं एट T डिग्री सेल्सियस, सो इट बिकम्स V0 प्लस V0 इंटू T डिग्री सेल्सियस, आपने वही टेम्परेचर लिया 3 डिग्री, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री का वैल्यू है, अपॉन 273। नाउ इन दिस इक्वेशन आई टेक V0 कॉमन, तो क्या बचेगा? VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T डिग्री अपॉन 273, which can also be written as VT is equal to V0 into 273 plus T degree upon 273. अब आपको पता है ना, 273 plus T degree is nothing but temperature in Kelvin. Temperature in degree Celsius plus 273 becomes temperature in Kelvin. तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि VT will be equal to V0. ओके, अंदर क्या आ जाएगा? ये पूरा पार्ट किसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे? टेम्परेचर इन कैल्विन इंटू टेम्परेचर इन कैल्विन divided by 273. Now 273 is the original temperature, 0 degree Celsius. Can I say 0 degree Celsius nothing but 273 Kelvin? लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं सर। तो 273 is nothing but the original temperature T0, तो हम लोग T0 लिख सकते हैं। yes, क्योंकि 273 is nothing but 0 degree Celsius, तो अपने 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट किया था, that is 273 Kelvin, तो ये भी आ गया आपका वैल्यू। सो अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा, इफ आई रीअरेंज आई कैन राइट डाउन दैट VT अपॉन T इज इक्वल टू V0 अपॉन T0। ओके, V0 अपॉन T0। अच्छा, अगर VT और T, V0 और T0 डिफरेंट वैल्यूज है, मतलब अगर ये V1 ले लिया अपॉन T2, अगर और वैल्यूज हुई तो वो क्या होगा? V3 अपॉन T3। तो हमेशा इनका रेशो क्या आने वाला है? K, कांस्टेंट आने वाला है। It's a constant always, so we can say V by T is always a constant value K, so we can say V is equal to K into T, or V is directly proportional to T। तो देखो N में तो आपका रिजल्ट वही आ रहा है। So when you increase volume, when you increase temperature, what happens to the volume of the gas? It will increase, but according to the law
कैसे इंक्रीज होगा? 1/273 टाइम द ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर. यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन. नाउ remember few points in it. See properly this equation. Vt is equal to V naught 1 upon T degree upon 273. ये इक्वेशन को बराबर देखो. इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ में ये इक्वेशन डिस्कस करेंगे. ओके, सो व्हाट आई विल डू, अच्छा कैलकुलेशन में आप क्या यूज करोगे? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. I'll rub this out. I'll take a graph here. सपोज मैंने ग्राफ प्लॉट दिया है. दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस. यहां पर हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर. हियर देयर इज अ टेम्परेचर, मतलब x एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है, y एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया, लीटर्स में ml जो भी है जैसा भी वॉल्यूम ले लिया. टेम्परेचर हम लोगों ने ले लिया सपोज डिग्री सेल्सियस में ले लिया. ठीक है, नाउ दिस इज अ 0 डिग्री सेल्सियस. यहां से सपोज दिस पॉइंट इज 273 डिग्री सेल्सियस और यहां से लेके लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज -273 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो वी हैव टू ग्राफ्स हियर. बेसिकली एक राइट हैंड साइड पे जाएगा इंक्रीज के लिए और एक लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा डिक्रीज के लिए. और हम लोग ये ग्राफ को अभी प्लॉट करेंगे इसको समझने के लिए कि ये ग्राफ कैसा वर्क कर रहा है. तो फॉर दिस ये इक्वेशन बराबर देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ हमारे पास क्लियर है कि when you increase volume what happens to the temperature of the gas increases. Okay, so here are different volume, 10 liters, 20 liters, 30 liter, 40 liter, 50 liter of gas, 60 liter हम लोगों ने प्लॉट किया है. ठीक है, वॉल्यूम लीटर में ले लिया हम लोगों ने. नाउ विद दिस इक्वेशन Vt is equal to V naught plus T degree upon 273. जब आप इसको कॉमन निकालते हो देखो इक्वेशन ये मिलता है. Vt is equal to V naught 1 plus T degree upon 273. Vt is equal to V naught 1 plus T degree Celsius upon 273. अब suppose the temperature rises to 273 डिग्री सेल्सियस. आपने इतना हीट कर दिया कि गैस का चला गया 0 डिग्री से आप हीट करते करते किधर चले गए? 273 डिग्री सेल्सियस तक चले गए. ओके, वहां तक आपने इसको हीट कर दिया. दैट इज अराउंड 546 केल्विन. उतना हीट कर दिया आपने गैस को. सो व्हाट विल हैपन? अगर मैं यहां पर वैल्यू 273, इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 273, दिस गेट कैंसल आउट. तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा. तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2. सो इन दिस कंडीशन Vt is equal to 2 times V naught. मतलब वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम. ट्वाइस मतलब गैस 10 लीटर का है. गैस 10 लीटर का. आप इसको हीट करते जा रहे हो, देखो इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है. इस पॉइंट पे आने के बाद वो डबल हो गया. ये कौन सा पॉइंट है? 273 का. देखो यहाँ पर आके वॉल्यूम डबल हो गया, 20 लीटर्स हो गया. तो एट 273 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस गेट डबल. सपोज वो अपने गैस लिया था 20 लीटर का, तो आप उसको हीट करते जा रहे हो. इस पॉइंट पे आने के बाद वो गैस यहाँ पर आ जाएगा. देखो सीधा डबल 273 में सीधा 40 लीटर्स, मतलब 20 लीटर का सीधा 40 लीटर हो गया और 10 लीटर का सीधा 20 लीटर हो गया. तो एट 273 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ गैस डबल. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू कूल द गैस? अब आप क्या कर रहे हो? गैस को कूल कर रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा. बट व्हेन द गैस इज कूल्ड एट -273 डिग्री सेल्सियस, कितना कूल कर दिया? -273. So 273 upon 273 cancel out, you get a -1 here. 1 minus 1 becomes what? 0. So volume at -273 degree Celsius of gas becomes 0. इसका मतलब गैस गायब नहीं हो गया, इसका मतलब गैस अपना स्टेट छोड़ चुका है. इट इज आइदर लिक्विफाई और लिक्विफाई होकर सॉलिडिफाई भी हो चुका है. तो एट -273 डिग्री सेल्सियस, अच्छा -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 ऐड कर दो, क्योंकि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना यू नीड टू ऐड 273. तो -273 + 273 becomes 0 केल्विन. तो -273 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो कॉल्ड एज 0 केल्विन, ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब एट दिस पॉइंट कोई भी गैस के स्टेट में नहीं रहेगा. मतलब एट -273 द वॉल्यूम बिकम्स 0. कोई भी गैस हो, मतलब गैस गायब नहीं हुआ है, गैस लिक्विफाई हो गया और लिक्विफाई हो गया सॉलिडिफाई हो चुका है. तो गैस इज लॉस्ट इट्स स्टेट एट दिस पॉइंट. इसका मतलब अगर मुझे चार्ल्स लॉ स्टडी करना है गैस में,
तो बराबर देखो 0 डिग्री में व्हेन यू आर हीटिंग देयर इज अ लीनियर इंक्रीज प्रॉपरली 273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम डबल हो गया, बट जब आप डिक्रीज करते जा रहे हो, क्या करते जा रहे हो, कूल करते जा रहे हो, -273 से पहले या उसके बाद वॉल्यूम 0 हो जाएगा, मतलब गैस लिक्विफाई होगा, तो आप उसको पढ़ नहीं सकते, बिकॉज लिक्विड्स के अंदर हम लोग गैस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गैस ओबेज चार्ल्स लॉ एट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, आप बोलेंगे सर हाई टेम्परेचर पे गैस लीनियरली वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है, बट लो टेम्परेचर पे आने के बाद दे डेवलप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, व्हेन दे डेवलप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे विल लिक्विफाई, तो दे विल डिविएट फ्रॉम द लॉ। इसका मतलब एक पॉइंट हमारे दिमाग में क्लियर है, गैस ओबेज चार्ल्स लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड Boyle's law at low pressure। दिमाग में डाल लो ये बात कि गैस हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर में गैस लॉस ओबे करेगा, तो वो गैस आइडियली बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो सारी दुनिया में गैस रियल गैस होते हैं, देयर इज नो आइडियल गैस, ऑल गैसेस आर रियल गैस, अ गैस व्हिच आर वेरी 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 वीक इंटरमॉलिक्यूलर। अब ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, why they are deviating from Boyle's law and Charles law, because they develop intermolecular forces। कोई भी टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपस में डेवलप कर लेंगे तो दे विल चेंज द स्टेट, तो दे आर नो मोर इन द गैसियस स्टेट, सो यू कैन नॉट अप्लाई दिस गैस लॉस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है। प्रॉब्लम इसके लिए अराइज हो रही है, द रीजन इज कि एट लो टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बहुत कम करते हो, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, और जब आप प्रेशर बढ़ाते हो गैस मॉलिक्यूल साथ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या डेवलप करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे विल लिक्विफाई, दे विल लूज देयर स्टेट, यू कैन नॉट अप्लाई गैस लॉ। सो अगर गैस लॉ पढ़ना है तो उनको साथ में आने मत दो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होने मत दो, मतलब प्रेशर को लो रखो ताकि कंप्रेस ना हो पाए, उसके बाद में टेम्परेचर हाई रखो ताकि वो साथ में नहीं आए, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई रहे। इवन इफ द अंडरगो कोलिजन दे डू नॉट डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई रहेगी तो स्पीड इतनी ज्यादा रहेगा तो कोलिजन करके वो दे विल बाउंस बैक। They should not get a chance to come very close to each other with slow movements, so that they can develop that attractive forces. Because moment they develop attractive forces, they will liquefy, and you cannot apply those gas laws. And you say कि sir gas is deviating from the gas laws. So दुनिया में जितनी भी गैस है, all those gases are real gases. They will behave ideally under two conditions, that is high temperature and low pressure. If the condition is low, I said they will behave all the gas laws, they will behave ideally, or they will obey all the gas laws at high temperature and low pressure. But if the temperature is low and the pressure is high, the gas will come close to each other, they will develop intermolecular forces and they will deviate from the gas laws। ठीक है, ये याद रखने का। अच्छा, जो गैसेस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होते हैं, लाइक नोबल गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, और उनको जब आप साथ में लेके आओगे वेरी लो टेम्परेचर माइनस में जाओगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होगा, वो भी एक डिस्पर्शन फोर्सेस। तो वो गैसेस को हम लोग नेक्स्ट टू आइडियल गैस बोल सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए आइडियली बिहेव करेंगे। ओके, एट हाई रेंज ऑफ प्रेशर एंड हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर दे कैन बिहेव आइडियली, बिकॉज दे हैव वेरी 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 वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर मैं पूछूंगा कि आइडियल गैस क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई भी आइडियल गैस होता नहीं। दूसरी बात, आइडियल गैस को डिफाइन करना है तो हाइपोथेटिकली दीज आर दोज गैसेस वेयर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द gaseous molecule are very 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 weak, and they will obey gas laws at all temperature and pressure. Real gases, they will obey gas laws to condition, low pressure and high temperature. कंडीशन चेंज किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप हो गया। मतलब अगर गैस को आइडियली बिहेव करना है तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप नहीं होने चाहिए, इन शॉर्ट। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। अब सपोज मैं आपको एक दूसरा ग्राफ इसके अंदर बता रहा हूं, ध्यान देना। सपोज मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है y एक्सिस और x एक्सिस पे, टेम्परेचर रेंज की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम प्लॉट कर दिया है और यहाँ पर टेम्परेचर प्लॉट कर दिया। तो वी नो दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। सपोज ये है 3, हाँ, ये जो हम लोगों ने सपोज प्लॉट किया है 1 atm पे, ठीक है, 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर पे गैस प्लॉट किया, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। अगर मुझे कोई पूछेगा सर 2 atm पे
मैं पूरा एक्सपेरिमेंट 2 ATM पे कैरी आउट करूंगा, वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करूंगा 2 ATM पे, तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा? तो अब क्या करने का इसमें, अगेन आप क्या करो, इसमें टेम्परेचर लॉक कर दो, लॉक कर दिया आपने, देखो भाई 1 ATM पे ये वॉल्यूम था, दिस इज योर P1, ओके, तो P1 पे टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट ले लिया, वॉल्यूम इतना होगा, द प्रेशर इज P1 1 ATM। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, सोचो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को छोड़ दो, थिंक ओनली अबाउट प्रेशर वॉल्यूम, आपको एक पैरामीटर कांस्टेंट लेना होता है ग्राफ सॉल्व करने के लिए, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट ले लिया, थिंक ओनली अबाउट प्रेशर एंड वॉल्यूम, मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया 2 ATM पे, सो व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब 2 ATM पे जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम इससे नीचे आना चाहिए। चलो यहाँ पर प्लॉट करो, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम आ रहा है, क्योंकि ये आपने प्लॉट किया 2 ATM, अब ग्राफ यहाँ से लिखे जाओ, सो ये ग्राफ हो गया 2 ATM का P2, so your P2 is greater than P1, so when you increase pressure ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स, ओके, सिंपल लॉजिक है, एक पैरामीटर को कांस्टेंट लो, दूसरे को सॉल्व कर दो। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट law, that is Gay-Lussac's law, but everyone has to remember one thing, gas obeys gas laws at high temperature, low pressure, they behave ideally. The moment temperature decreases, their pressure increases, they come close, they lose their kinetic energy because of the decrease in temperature, they develop intermolecular forces and they deviate from the gas laws. तो अब वो आइडियल नहीं रहेंगे, वो डिविएट करना चालू करेंगे। दुनिया में जितने भी गैसेस सब रियल होते हैं, दे बिहेव आइडियली अंडर दीज कंडीशंस। Now the next law is Gay-Lussac's law, not of combining volume, वो some basic concept में था। This Gay-Lussac's law is a relationship, देखो अभी हम लोग ने Boyle's law में किसका रिलेशन निकाला, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, ठीक है, फिर हम लोगों ने रिलेशन निकाला वॉल्यूम टेम्परेचर का, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट लिया, चार्ल्स लॉ। अब हम लोग Gay-Lussac's लॉ में Gay-Lussac's लॉ में वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेंगे और प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन निकालेंगे। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है कि हम लोग ने वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया, बट व्हाट हैपेंस टू दी प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा होगा? तो बहुत सिंपल है, आप एक कंटेनर लो, इस कंटेनर को हम लोग यू शेप मैनोमीटर ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहां पर मर्क्यूरी फिल कर देंगे, दिस इज द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, तो दोनों साइड पे लेवल ऑफ मर्क्यूरी सेम है, मतलब जो अंदर गैस एनक्लोज है, सपोज ये टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो अंदर गैस एनक्लोज है उसने जो प्रेशर अप्लाई किया और जो एयर प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ गैस, एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये है प्रेशर ऑफ गैस, दोनों इक्वल है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस। नाउ सपोज इस टेम्परेचर को हीट करके हम लोग भी टेक इट एज 50 डिग्री सेल्सियस, सो मोमेंट यू टेक इट एज 50 डिग्री सेल्सियस, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी राइज हियर, सपोज वो इधर पे आ गया, मर्क्यूरी डाउन इधर पे आ गया, कम्स हियर, यहां पर इंक्रीज होने लग गया। So now what happens? The pressure of gas. What happens to the pressure of gas? The pressure of gas increases, and it will be equal to PATM plus. From this, you calculate a height. This is the height. इतना level increase हुआ है on the right hand side. So it is height of the mercury column. So clearly, when you increase temperature, what happens to the pressure of gas? The pressure of gas will increase because gas के पास ज्यादा kinetic energy आ जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करेंगे? कंटेनर के वॉल पे कोलिजन करेंगे। अगर कोलिजन कर रहे हैं तो उनका प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, मतलब अगर मैंने क्लोज कंटेनर लिया गैस डाल के और हीट करे जा रहा हूं, तो व्हाट विल हैपन टू द गैस इनसाइड? the temperature of the gas will increase, the kinetic energy will increase, it will start colliding with a very high pressure on the walls and definitely the pressure of gas will increase। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल लॉ है, सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली था, मैंने आपको बता दिया। तो सिंपली यू कैन फ्रेम फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम हमने क्या रखा है गैस का कांस्टेंट। देखो वो जो कंटेनर था वो क्लोज कंटेनर था, उसमें कोई पिस्टन नहीं था, उसमें गैस वॉल्यूम कांस्टेंट था,
we can say that pressure of gas is directly proportional to temperature, या P is equal to K into T, or we can say P upon T is always constant. So for two different pressure, two different temperature, we can write down P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. और अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल तरीके से प्लॉट हो सकता है. ये प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया. टेम्परेचर हम लोग ने ले लिया केल्विन में, प्रेशर ले लिया है बार प्रेशर. सो व्हाट हैपेंस, इट विल इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस. सपोज ये हम लोग ने लिया है 1 लीटर पे, द वॉल्यूम ऑफ गैस वाज 1 लीटर. V1 वॉल्यूम ऑफ गैस V1 है 1 लीटर. ओके, और मैं आपको बोल रहा हूं कि अब हम लोग जो नेक्स्ट गैस लेंगे कंटेनर में उसका वॉल्यूम V2 है. V2 इज ग्रेटर देन V1. तो वो ग्राफ किधर प्लॉट होगा, अबव दिस और बिलो दिस. एक किसी को कांस्टेंट कर लो भाई, प्रेशर कांस्टेंट कर लेते. चलो यहाँ पर तो प्रेशर कांस्टेंट कर लिया मैंने. देखो एट कांस्टेंट प्रेशर दिस वाज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम इज V1. अब प्रेशर जो कांस्टेंट लिया उसको छोड़ दो. अब आप बताओ मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है. टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन ये है कि हाई वॉल्यूम मींस हाई टेम्परेचर. अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा ये रिलेशन है. दूसरा, अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन निकालो तो इट सेज द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दिस वाज द प्रेशर. ठीक है, दिस वाज द प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज V1. आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि प्रेशर कम हुआ है, बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर. तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो मतलब प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है. तो अब अगर V2 की मैं बात कर रहा हूं तो V2 इज ग्रेटर वॉल्यूम. तो ग्रेटर वॉल्यूम पे प्रेशर के वैल्यू इधर नहीं, उससे थोड़ा नीचे आएगा. सेम टेम्परेचर, आप ग्राफ यहां से निकालो, दिस बिकम्स V2. सिंपल है. सो एट हायर वॉल्यूम ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा. आपने टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है, प्रेशर का रिलेशन निकालना है और ग्राफ आपको ये सेम उसमें दिखेगा. V3 होगा तो और नीचे आएगा, V4 होगा और नीचे आएगा, जिसमें V4 विल बी द हाईएस्ट वॉल्यूम. तो जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे ग्राफ नीचे की तरफ आएगा. ओके, सो दिस इज Gay-Lussac's law which says that pressure is directly proportional to temperature for a given mass of a gas at a constant volume. Now let's move on to the fourth law, that is Avogadro's law. Avogadro's law में हम लोग ये बार प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे हैं. प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट, बट वी आर फाइंडिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो बहुत सिंपल है. अगर मैं आपको पूछ रहा हूं 1 मोल में 1 मोल ऑफ O2, बहुत सिंपल है ये सोचना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आता है वो इजीली आंसर कर सकता है. 1 मोल ऑफ O2 में कितने O2 मॉलिक्यूल है, आप मुझे बोलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल. मेरा वेरी गुड. ठीक है. और अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहा हूं STP पे, तो इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर है STP. मैंने बताया था, बट न्यू वैल्यू 22.7 होता है. अगर मैं 1 मोल ऑफ CO2 बोल रहा हूँ, CO2 इज अ मॉलिक्यूल, तो आप बोलेंगे सर इट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 CO2. वेरी गुड. मतलब व्हाट अबाउट 1 मोल ऑफ CO2 STP, तो आप बोलेंगे सर STP, तो CO2 will occupy 22.4 liter. It means equal volume of different gases have same number of molecules. I'll write down here at constant pressure and temperature. So I'll write down here, क्योंकि आपने टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना, प्रेशर टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. ऑब्वियस बात है, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम and volume is directly proportional to temperature. So we can say at constant temperature and pressure, equal volume of all gases is directly proportional to n, where n is nothing but the number of molecules. Okay, number of molecules. But as we know, the number of molecule is directly proportional to number of moles. कैसे? आपको याद होगा, अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना होता है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करता हूं एवोगैड्रो नंबर से. वेरी गुड.
1 mole into this, 2 moles into this, 3 moles into this, I multiply by Avogadro number, तभी मुझे number of molecules मिलता है. But Avogadro number तो एक constant value है. So we can say number of molecule is directly proportional to what? Number of moles. तो इसके लिए मैंने number of molecules की जगह पे number of moles लिख दिया. अगर यहाँ पर मैं लिख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू एन, या V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, और यू कैन से V अपॉन N इज इक्वल टू C, अ कांस्टेंट वैल्यू. So you get a constant value here. Okay guys, so equal volume of all gases at same temperature and pressure have same number of molecules or same number of moles. So now we have 4 laws with us. हमारे पास 4 लॉ है अभी. Rub this out. So हमारे पास टोटल 4 लॉज है. मैं भी ये निकाल देता हूँ. देखो प्रेशर, टेम्परेचर, मैं अगेन फिर से लिख दूंगा सारे वैल्यूज. We have discussed 4 laws total. The first law हमारा था, वो था Boyle's law, where pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Second was Charles law, where volume is directly proportional to temperature at constant pressure. Third is Gay-Lussac's law, where pressure is directly proportional to temperature where volume is kept constant. And fourth is Avogadro law, where we say volume is directly proportional to number of moles or number of molecules where pressure and temperature was constant. So when you combine all these laws, when you add all these laws, you will get a final combined gas equation, which is also called as आइडियल गैस इक्वेशन. मतलब गैस अगर आइडियल तरीके से वर्क कर रहा है तो ये चारों लॉ को बिहेव करना चाहिए. तो अगर इनको मुझे कंबाइन करना है और एक साथ लिखना है तो मैं कैसा लिखूंगा? देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. पुट अ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हियर, 1/V. ठीक है. नाउ इफ यू सी प्रॉपर्ली, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर मैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख रहा हूं तो ऐसा लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 1/T. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, तो वी कैन राइट हियर दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नाउ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे, so we get an equation PV is directly proportional to NT. देखो, PV साथ में आना चाहिए because P और V साथ में आ सकते हैं. PV is constant, so P is inversely proportional to V, P is directly proportional to T, V is directly proportional to N, and V also directly proportional to T. सारे लॉस साथ में आ गए. Now you remove the proportionality sign, you write down a constant PV is equal to N RT, where R stands for gas constant. And this equation PV is equal to nRT is the ideal gas equation or combined gas equation. Now अगर मैं दो different condition दे रहा हूँ, N stands for number of moles, V is volume, P is pressure, R is a gas constant, T is a temperature. Gas constants की values मैं बताऊंगा, but एक और चीज याद रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि अगर मैं इसको डेंसिटी में फ्रेम करूं तो मुझे ऐसा लिख सकता हूं दैट PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या आ जाएगा? मास अपॉन मोलार मास इनटू RT. वी कैन रीअरेंज P इज इक्वल टू P इंटू M इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन V इंटू RT. ना मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी. सो वी गेट अ इक्वेशन PM इज इक्वल टू DRT. नाउ दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डेंसिटी. सो डेंसिटी के टर्म में भी हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं. So we can frame it as PM is equal to DRT. Now also consider, suppose there are two gaseous system, दोनों में number of moles of gas same है, और इसको और simplify कर देते हैं. I am considering a gaseous system when number of moles of gas is N. Here the pressure of gas is P1, volume is V1, temperature is T1. Okay.
अब आप कंडीशंस थोड़ी चेंज कर दी, आपने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिए, तो उसके वजह से नाउ the piston is moving the upward direction, so you have a new temperature T2, volume V2, pressure P2. pressure भी आपने थोड़ा चेंज किया. So but the number of moles of gas will remain what? Same. So for same gas with two different temperature, two different pressure, two different volume, we can have a equation. इसके लिए equation क्या होगा? P1 V1 is equal to nRT1. इसके लिए equation होगा P2 V2 is equal to nRT2. Okay? So when you equate this equation, nr and nr get cancel out. जब दोनों equation को आप divide करोगे, and you will get P1 V1 upon P2 V2 is equal to T1 upon T2, or you rearrange and write down P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So this is also a combined gas equation used for the calculation. So you can use PV is equal to nRT, PM is equal to DRT, or P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Now let us talk about the values of gas constant. So values of gas constant will depend upon the different substitution. We know that R is equal to PV upon nRT. बट फॉर 1 मोल, अगर मैं 1 मोल सिस्टम लिखता हूं तो n तो वैसे ही 1 हो गया, मतलब PV इज इक्वल टू RT हो गया. अब प्रेशर की डिफरेंट वैल्यू, सपोज आपने प्रेशर का इसमें वैल्यू लिया है 101,325 किलो पास्कल, 325 पास्कल लिया है, 22.4 लिया है, 1 मोल लिया है. स्टैंडर्ड समझो, स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोगों ने लिया है 101,325 पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम ले लिया 22.4 लीटर्स एट एसटीपी, आपको याद होगा, मैंने बताया था. सो 22.4 लीटर्स को अगर मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइडेड बाय NT था, तो N था 1 मोल, तो 1 मोल के लिए N निकल जाएगा, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 मोल. चलो N इज 1 मोल इंटू टेम्परेचर कितना डाल रहा हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.15 Kelvin. So when you divide, you get a certain value. That value is 8.314 meter square. Meter cancel, that is nothing but Newton meter, ठीक है, per Kelvin mole. अब न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल्स होता है, तो जूल्स per Kelvin mole. So this is one of the value in joules, 8.314 joules per Kelvin mole. Similarly, if you take a pressure as 1 atm, कितना 1 atm, वॉल्यूम as 22.4 लीटर्स, मतलब प्रेशर को हम लोग ने atm में लिया, वॉल्यूम लीटर्स में लिया, 1 मोल और 273 कांस्टेंट रखा, तो आपको दूसरा वैल्यू इसका मिलेगा 0.08201 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल. ओके, दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल, क्योंकि आपने वॉल्यूम लीटर में लिया था और प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया. अब जूल से अगर कैलोरीज में कन्वर्ट करोगे तो R विल कम्स टू 1.98 कैलोरीज पर केल्विन मोल, लेकिन कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए यू टेक इट एज 2 कैलोरीज पर केल्विन मोल. This is the value of R. So you need to remember 3 values of R: 8.314 joules per Kelvin mole, 0.0821 liter atmosphere Kelvin mole, and 2 calories per Kelvin mole. अब में कन्वर्ट करना तो आपको पता है, you have to multiply by 10⁻⁷. So that's a different story. So this is the ideal gas equation. So you have to remember most important point what I am saying right now, कि all gases in nature are real gas. They behave ideally. It means they are obeying gas laws under 2 conditions: high temperature, low pressure. Because if you reduce temperature and if you increase pressure, the gas will come close with a very less kinetic energy, with a very less movement, and develop intermolecular forces, and they will try to change their state, and they will change their state. When they change their state, you cannot apply gas laws. So gas will deviate from the ideal condition at low temperature and high pressure, and they will obey ideal condition at high temperature and low pressure. दिमाग में लॉक कर लो कि दुनिया में जितनी भी गैसेस है रियल गैसेस है. आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. आइडियल गैस का मतलब एक ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गेरुस्टैस लॉ को सारे टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे करे. दीज आर कॉल्ड एज आइडियल गैस. हाइपोथेटिकल डेफिनेशन. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज आइडियल गैस, यू विल से सर इट इज अ हाइपोथेटिकल गैस. अ गैस is definition. So it's a hypothetical gas which obeys all gas laws at all temperature and pressure. It means that at any range of temperature and pressure they do not develop intermolecular forces, because सारा problem कब आता है when they develop intermolecular forces.
तो आइडल गैस आर दोज गैस विच डू नॉट डेवलप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अब रियल गैस क्या है? दुनिया में जितने भी गैसेस है, ऑल नेचुरल गैस आर रियल गैसेस. They will obey gas laws. It means they will behave ideally. They are not ideal. They behave ideally under two conditions, that is high temperature and low pressure. But if the condition change, they develop intermolecular forces and they will deviate. So this is all about gas laws and the measurable property of gases. So I hope you understood the entire lecture. आप इसके numericals solve करो, text back plus MCQ solve करो from the notes. We'll see you in the next lecture. Take care. Bye.